यस, सेक्शन 41 पुरानी सीआरपीसी का। Section 35. When police may arrest without warrant. Subsection 1. Any police officer may, without an order from a magistrate and without a warrant, arrest any person who commits in the presence of police officer a cognizable offense, or against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense, punishable with the imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years, whether with or without fine, if the following conditions are satisfied, namely: the police officer has a reason to believe on the basis of such complaint, information, or suspicion that such person has committed the said offense. The police officer is satisfied that such arrest is necessary: A. To prevent such person from committing any further offense. B. For proper investigation of offense. C. To prevent such person from causing the evidence of the offense to disappear or tampering with such evidence in any manner. D. To prevent such person from making any inducement, threat, or promise to any person acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such facts to such court or to the police officer. E. As unless such person is arrested, his presence in the court whenever required cannot be ensured. And the police officer shall record while making such arrest reason in writing. Provided that a police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required in the provision of the subsection, record the reason in writing for not making the arrest. C. Against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense, punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years, whether with or without fine or with a death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of that information that such person has committed the said offense. D. Who has been proclaimed as an offender either under the Sanhita or by order of the state government. E. In whose possession anything is found which may be reasonably suspected to be stolen property, and who may reasonably suspect of having committed an offense with reference to such thing. F. Who obstruct a police officer while in the execution of his duty, or who has escaped or attempt to escape from a lawful custody. G. Who is reasonably suspected of being a deserter from any of the armed forces of the Union. H. Who has been concerned or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received, or a reasonable suspicion exists of having been concerned in any act committing at any place out of India, which, if committed in India, would have been punishable as an offence, and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India. I. Who, being a released convict, commit a breach of any rule made under subsection 5 of section 394. J. For whose arrest any requisition, whether written or oral, has been received from another police officer, provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offence and other cause for which the arrest is to be made, and if it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition. ठीक है, देखो, इस अगर पूरे तुमको मतलब पूरे का एक सार बना के दे दें हम, एक तरफ पेज उठाओ, या इसी में फेयर में करते हैं, इसमें याद रहेगा। देखो, तुमको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा है कि कब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। पुलिस अरेस्ट विदाउट वारंट, तो तुम्हें इसमें याद रखना है C7 P सॉर्डर, C7 P सॉर्डर, C7 PSODERR। ठीक C से हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत। दूसरा, जब 7 साल से ऊपर का कोई अपराध हो, लेस देन 7 साल, पढ़ अच्छे से पढ़ पहले, सॉरी हाँ, 7 साल से कम कम, और भी होगा, एक और वर्ड होगा, 7 साल तक, है ना, अकेला 7 साल नहीं है। Against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists that there has been committed a cognizable offense with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years। ठीक है, 7 साल या 7 साल से नीचे का कोई अपराध है ना, 7 years और लेस देन 7 years का कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है।
और उसकी रीजनेबल कंप्लेंट हुई है या सस्पिशन है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है ना, है ना। अब ये कब हो रहा है, बस इनकी कुछ कंडीशंस हैं। इसकी पहली कंडीशन ये है कि द पुलिस ऑफिसर हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन, दैट सच पर्सन, मतलब एक स्पेसिफिक व्यक्ति है जिसने अपराध किया है, ये पता चल रहा है कंप्लेंट से या सस्पिशन से। दूसरा, पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि भैया ये दूसरा अपराध ना कर दे, अदर ऑफेंस ना कर दे, कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इस ऑफेंस की हो पाए तो इसको अरेस्ट करना जरूरी है, ठीक है ना। एविडेंस के साथ ये छेड़छाड़ कर देगा, उनको गायब कर देगा, इसलिए इसका अरेस्ट होना जरूरी है ना। किसी व्यक्ति को डराएगा, धमकाएगा, झूठे वादे करेगा, है ना, है ना। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन द कोर्ट। भैया अगर हम इसको अरेस्ट नहीं करेंगे इस अपराध में तो फिर इसकी जो प्रेजेंस है उसको हम इंश्योर नहीं करा पाएंगे कोर्ट में। पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिप्शन है फिर आगे हाँ, यहाँ पे उसको रीजनेबल सस्पिशन लगता है तो वो कर सकती है, ठीक है ना। तो C7 आ गए अपन। अब पीस ऑर्डर पे आ जाओ, तो पी से क्या है देखो, हमने बोला था 2 हैं बेटा इसमें, 7 साल या 7 साल से कम का अपराध है 7 में, फिर दूसरा है जिसमें 7 साल से ज्यादा का अपराध है, देखो पढ़ो। सी वाला है। हाँ ये सी है। C7 पीस ऑर्डर में, तो 7 में 2 है ना बेटा। Extend more than 7 years or with fine which with death sentence, the police officer has a reason to believe on such person has committed the offense। तो ये तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अब 7 साल से कोई ऊपर भी अपराध है तो गंभीर अपराध ही होगा, छोटा अपराध तो नहीं होगा, तो पुलिस बिना वारंट नहीं, वो तो अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। अब पीस ऑर्डर पे आप पीस, कोई व्यक्ति किसी को आपने क्या कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, पी से क्या हो गया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर इस संहिता के अंतर्गत किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया है तो फिर उसको आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। कई लोग प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जारी होते हैं, क्या होता है कि कई बार किसी केस में आता ही नहीं है, क्या नहीं आता, एक्यूज, है ना। 2-3 कारण होते हैं, या तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, पुलिस की गिरफ्त से बाहर ही है, मिल ही नहीं पा रहे, ठीक है, ढूंढ रहे हैं, इधर उधर छुपा हुआ है, हर बार एस्केप कर जा रहा है, तो इस केस में भाई हम कब तक उसका इंतजार करेंगे, ठीक। तो एक टाइम के बाद उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया जाता है, उसकी प्रॉपर्टी सीजर का काम चालू हो जाता है उसके बाद से, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब तुम एक तो अपराधी हो, अपराधी करने के बाद तुम कोर्ट के उससे भाग रहे हो, तुम कानून से भाग रहे हो, तो हम तुम्हें मदद नहीं करेंगे, उल्टा अब तुम पे परेशानियां बढ़ती जाएगी। तो जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इस संहिता के अंतर्गत डिक्लेयर कर दिए गए उनको अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, उनके लिए अरेस्ट की जरूरत नहीं होती है। आया समझ में। अब आ जाओ एस पे, है ना। सस्पेक्टेड टू बी ए स्टोलन प्रॉपर्टी, भाई किसी के पोजेशन में कोई ऐसी संपत्ति पाई गई है जो कि चोरी की संपत्ति है, तो उस व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो कितनी छोटी चीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो कभी भी वैल्यू को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, चोरी की चीज है, ठीक है। आया समझ में। किसी के लिए 50 रुपए की चोरी भी बड़ी चोरी है, किसी के लिए 5 लाख की चोरी बड़ी चोरी नहीं है, आया समझ में। तो भाई चोरी का अगर अपराध दर्ज हुआ है और चोरी की संपत्ति किसी के पास मिली है, ठीक है, प्रैक्टिकली बात अलग होती है। देखो प्रैक्टिकली उसको छोड़ दो तुम, क्योंकि प्रैक्टिकली बट ऑब्वियस यार 5-10 रुपए की बात के लिए कौन पीछे आएगा, है ना। लेकिन तुमने देखा होगा कि अपराधों का कोई वो नहीं है, मतलब कि कोई वैल्यू निर्धारित अलग अलग केसेस में है, पर चोरी में तो नहीं है। किसी भी संपत्ति की चोरी चोरी मानी जाएगी, आया समझ में। आपने चोरी, अब छोटी चोरी तो भाई मिठाई की भी है, किसी मिठाई की दुकान से, आया समझ में। भाई तुम रोज एक पेड़ा चोरी करते हो तो कर तो चोरी रहे हो ना भाई, अब उस एक पेड़े से कुछ नहीं हो रहा किसी का, लेकिन रोज एक पेड़ा हमारा गायब हो रहा भाई, आया समझ में। बात बता रहे कहने की, तो छोटी छोटे अगर आप वो करके भी इकट्ठे एक जगह कर लोगे तो वही चोरी संपत्ति कहलाएगी। अब पता चला कि तुम्हारी खुद की मिठाई की दुकान हो गई चोरी करते करते, तुम एक पेड़े की दुकान तुमने खोल ली सामने वाले पेड़े वाले से बोल के, ठीक है,
तो वो अगर उनके पास पाई जाती है तो वो चोरी की संपत्ति होगी। और अब क्योंकि वो चोरी की संपत्ति है और आपके पास पाई गई है और आप पे रीजनेबल सस्पिशन है कि ये आपकी नहीं है, तो फिर हम आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। आया समझ में? ठीक। अब आ जाओ। ओ, obstruct a police officer. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर पढ़ लो। देखो, पुलिस ऑफिसर अपनी अगर ड्यूटी को निभा रहा है, ठीक है, और तुमको किसी प्रकार से रोक रहा है, या तुम भाग रहे हो, तुमको रोक रहा है, ठीक है, या तुमको कस्टडी में से भागने से रोक रहा है और कोई व्यक्ति उसको रोक रहा है, तो वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है उसको। ठीक। भाई एक तो बामुश्किल पुलिस क्या करती है, अपना काम करती है, और तुम उसको उसमें भी रोक दो, तो तुम्हें तो बिना वारंट के अरेस्ट किया ही जाना चाहिए। ठीक है। आया समझ में? क्योंकि इतनी मेहनत करके वो अपना लीगल काम कर पाई है ले दे के, ठीक है। तो इतनी परेशानियों के बाद भी तुमने अगर उसको रोक दिया तो फिर दैट मीन्स यू ऑफेंस इज सीरियस एंड यू कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। क्योंकि भाई वो तो किसी व्यक्ति को भागने से, अपनी कस्टडी से भागने के लिए, जो लॉफुल कस्टडी है उससे भागने से रोक रहा है। आया समझ में? आ जाए आगे। डी, डिजर्टर। डी है डिजर्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं देख लो डिजर्टर को। अभित्याजक। डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मतलब कि जो फोर्सेस से भाग गया है। नहीं समझ गए? तो उस व्यक्ति को आप क्या कर सकते हो, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर क्या है अपना? एच ई ऑर्डर, डर हो गया, डी ई आर आर बचा है, ई। हाँ, ई है एक्सट्राडिशन। बहुत बढ़िया। भाई तुम कहीं और भाग गए हो किसी पराये देश में, अब हमें तुम्हें उसको अरेस्ट करना है, ठीक है। तो अब अगर तुम हमारे पास आओगे तो हम तुम्हें बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। अब हमें किसी वारंट की ज़रूरत नहीं। अब आ जाओ आर पे। रूल पहले ये 356(4) था, अब ये क्या हो गया 394 का 5। ये बेसिकली जो व्यक्ति छूटे जाते हैं उन पर कुछ कंडीशन लगाता है। अब अगर इन कंडीशंस को तुमने फॉलो नहीं किया तो आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकेगा। और दूसरा आर क्या बोलता है, रिक्विजिशन। रिक्विजिशन मतलब कि दूसरा पुलिस वाला कह रहा है कि साहब इसको अरेस्ट करना है, और आपको भी लगता है कि हाँ यार इस व्यक्ति को तो अरेस्ट किया जाना चाहिए। देखो वहाँ पे लिखा हुआ कोई रिक्विजिशन ओरल में या रिटन में आई है किसी अनदर पुलिस ऑफिसर को, किसी अलग ऑफिसर को आई है ना, उसमें लिखा है कि पर्सन ये पर्सन है, ठीक है, इसने ये अपराध किया है ना, और इसको अरेस्ट किया जाना है ना, और इसको लीगली बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, तो फिर दूसरा पुलिस वाला रिक्विजिशन पे बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। Subsection 2. Subject to the provision of section 39, no person is concerned रुक in जा, a अब वीडियो को परसेप्टिव को छोड़ के बता रहे हैं कि ये C7 पीस ऑर्डर मीन्स का क्वेश्चन है भाई साहब। अब तुम सोचोगे कि केवल एक ही सेक्शन है जो कह रही है कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। नहीं, आने वाली और सेक्शन मिलेंगे तुम्हें जो ये कहेंगे कि बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। तो हम तुम्हें बोल रहे हैं कि जब कोई मीन्स का क्वेश्चन आएगा कि व्हेन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, तो देयर इज नॉट ओनली वन सेक्शन, ठीक है, which says that the police should arrest a person without warrant. There are a number of sections which says कि yes, the police can arrest a person without warrant. आया समझ में? अब वो आगे पढ़ेंगे अपन। Subject to the provision of section 39, no person concerned in a non-cognizable offence or against whom a complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of magistrate. इसको छोड़ के, ठीक है, सेक्शन सब्जेक्ट टू प्रोविजन नो पर्सन कंसर्न इन अ, ये अलग है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ही यही है कि जिसमें आपको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, बस। हाँ वही ठीक। सेक्शन सबसेक्शन 3,
The police officer shall, in all cases where the arrest of a person is not required under subsection 1, issue a notice directing the person against whom a reasonable complaint has been made or a credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense to appear before him or at such other place as may be specified in the notice. बहुत बढ़िया। इसको पहले 41A बोला गया था। क्या होता है कि जब पुलिस को पूरा केस समझने के बाद ये लगता है कि भैया इसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, जब पुलिस को पूरे तथ्यों को देख के अपराध के ये लगता है कि यार इस व्यक्ति को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अरेस्ट करने की ज़रूरत देखो किन किन केसेस में हो जाती है, तो बताइए अरेस्ट करने की ज़रूरत किन किन केसेस में नहीं हो जाती है। तो एक तो गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमें तुम्हारी सारी जानकारी है, मतलब हम इसका घर भी पता कर सकते हैं, ये जब भी आना होगा इसको बुला भी सकते हैं, सारी चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो इस वजह से ये सारी ये तो ऐसा नहीं कहेंगे इसको अपन, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ों को देख के कि अरे यार ये तो लड़का है, यहीं पढ़ता है, फला लिखा, मतलब दूरी सार बेसिकली आप उसकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से एसर्टेन कर सकते हो और आपको जब चाहे उसे बुला सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी, तो आप फिर उसे नोटिस दे के छोड़ सकते हो। ठीक है। Subsection 1. Where such notice is issued to any person, itself the duty of that person to comply with the terms of the notice. ठीक है, नोटिस दे के तुम्हें छोड़ा तो भाई बट ऑब्वियस है कि उस नोटिस की आपको कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। Subsection 5. Where such person complies and continues to comply with the notice, he shall not be arrested in respect of the offence referred to in the notice, unless for a reason to be recorded the police officer is of opinion that he ought to be arrested. पुलिस जब तक नोटिस का कंप्लायंस चल रहा है पुलिस उसको अरेस्ट नहीं करती है, लेकिन जिस दिन बंद हो जाएगा उस दिन अरेस्ट कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भाई। टर्म्स लगाए हमने, कंडीशंस लगाई हैं कि आप उसको ध्यान में रखो, आप उनको फॉलो नहीं कर रहे तो आपको बिना वारंट के ले लेंगे। See, subsection says where such person at any time fails to comply with the terms of the notice or is unwilling to identify himself, the police officer may subject to such order as may have been passed by the competent court in this draft, arrest him for the offence mentioned in the notice. ठीक है, कोई दिक्कत? फिफ्थ और सिक्स्थ वाले में अंतर क्या है? देखिए, unless he हम बता रहे वेयर सच पर्सन कंप्लाइज एंड कंटिन्यूज टू कंप्लाई, है ना, not be arrested unless for reasons to be recorded the police officer is of the opinion that he ought to be arrested। जब तक कि उसको भैया, फिर देखो जब वो नोटिस का पालन कर रहा है तो तुमको रीज़न लिखने पड़ेंगे कि भाई हम इसको अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो सब तो कर रहा है, उसके बाद तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ रही है उसको अरेस्ट करने की। और सिक्स्थ वाला क्या बोल रहा है कि जब वो कंडीशंस को कंप्लाई ही नहीं करता और अपने आप, देखो सबसे पहले तो वो कंडीशन को कंप्लाई नहीं कर रहा तो आप उसको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ये तो अपनी पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि जब तुमको पकड़ा है तो तुम अपनी जानकारी नहीं दे रहे, अब तुम्हें जानकारी नहीं दे रहे हो तो तुम्हें नोटिस दे के छोड़ेगा कैसे, ठीक है ना। द पुलिस ऑफिसर में सब्जेक्ट टू सच ऑर्डर्स एज मे बी फलाना अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन्ड, है ना, आया समझ में। तो जो अपराध किया है उसके लिए वो अरेस्ट कर सकेगा। ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा कंप्लेंट कोर्ट से। Subject to such orders as may have been specified passed by the competent court in this behalf। क्या होता है कि आपने अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया तो उस व्यक्ति को आप अरेस्ट करके क्या करते हो, कोर्ट में पेश करते हो, फिर कोर्ट आदेश करती है कि क्या करना है। ठीक ठीक है समझ गए। Subsection 7. No arrest shall be made without prior permission of an officer not below the rank of deputy superintendent of police in case of an offence which is punishable for imprisonment of less than 3 years and such person is infirm or is above 60 years of age। स्टार लगा लो भैया इस पे, स्टार नया जोड़ा है। हाँ। no arrest shall be made without prior permission of not below the rank of DSP, है ना, DSP से रैंक का आदमी नहीं होना, DSP से नीचे की रैंक का कोई आदमी नहीं होना चाहिए और आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कब, जब आप किसी व्यक्ति को, ठीक है, 3 साल से नीचे के अपराध में अरेस्ट करना चाह रहे हो और वो व्यक्ति क्या है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मैं मानसिक रूप से कह रहे, इन्फर्म में मतलब कमज़ोर है या जो भी कह लो, क्या कहते हैं, बीमारी से पीड़ित है ना, और 60 साल के ऊपर का है। तो 60 साल के ऊपर का है तो 3 साल से नीचे के अपराध में आप उसको नहीं पकड़ सकते हो, पहली चीज़। और जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है आप उसको भी क्या नहीं कर सकते हो, बिना वारंट के, बिना DSP की कंसेंट के आप उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये नया है एक चीज़। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सेक्शन अच्छी है, ये सब सेक्शन अच्छी है ना, क्योंकि
दिक्कत ये आती है कि भाई तुम पुलिस अरेस्ट तो कर लेती है, लेकिन पुलिस अरेस्ट करने के बाद खुद ही परेशान रहेगी। क्या है कि भाई पीड़ित है, सपोज बीमार है ना, तो अब उसका इलाज विलाज कौन देखेगा, तो कायदे से आप अरेस्ट नहीं करो, है ना। लेकिन ऐसे में अरेस्ट करना ही मतलब आप ऐसे में अरेस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते जब उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं मिल रही है, जब वो इधर उधर भाग जाएगा, जब आपकी वो सारी जो पहले कंडीशंस आपने पढ़ी थी वो सब में परेशान कर देगा, तब आप उसको अरेस्ट करोगे भाई साहब। ठीक। ऐसा नहीं है कि वो गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो आप उसको छोड़ दोगे फिर उस कंडीशन में, है ना। उधर तो अपन 7 साल वाला देख रहे थे ना, इधर अपन 3 साल के नीचे है। हाँ 3 साल के नीचे का है तो डीएसपी, अब ये नहीं लिखा है कि आप अरेस्ट कर ही नहीं सकते, भाई डीएसपी को जानकारी दोगे कि साहब ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये आदमी सही लग रहा है या सही नहीं लग रहा है, जो भी कंडीशन है तो आप बताओ, तो डीएसपी फिर कंसेंट दे देगा उस पर कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसलिए तो हमने लिखा है कि भाई अपराध की गंभीरता भी कम है और व्यक्ति की परेशानी को भी हमने देख लिया, तो इसमें जो सोसाइटल इम्पैक्ट है उसको हम जज करके ये प्रोविजन को अलाउ कर रहे हैं। दैट डज नॉट मीन कि ये सोसाइटी पे ही इम्पैक्ट करेगा फिर से, वो भी नेगेटिवली, आया समझ में। तो हम अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा ये प्रोविजन तो फिर हम उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, और यही चीज इनने इसमें बैलेंस करके लिख दी। ठीक सर। सेक्शन 36 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड द ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। Every police officer while making an arrest shall bear an accurate, visible and clear identification of his name which will facilitate easy identification. B. Prepare a memorandum of arrest which shall be attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or is respectable member of a locality where the arrest is made, countersigned by the person arrested, and inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest. दिख जाओ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का और ड्यूटीज क्या होंगी जो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा। तो पुलिस ऑफिसर जो भी आपको अरेस्ट कर रहा है, सबसे पहले तो वो जो अपने नाम का, अपने आइडेंटिफिकेशन का क्लियर वो पहनेगा, बेसिकली वो बैच पहनते हैं ना अपने नाम का, वो सब कुछ वो रखेंगे, है ना, जिससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ भैया ये पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि जरूरी है। लेकिन सर कोई ऐसे नॉर्मल नहीं कर सकता, जैसे कोई बिना पुलिस के कपड़ों में हो, अरेस्ट नहीं कर सकता। वो अलग केसेस होते हैं भाई साहब। प्रोसीजर और ड्यूटीज अरेस्ट करने की तो यही रहेंगी। नहीं अपन ने उसमें नहीं लिखा क्राइम उसमें भी हाँ, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तब भी एक पुलिस वाला होता ही होता है। नहीं पुलिस वाला तो होता है लेकिन ऊपर पहनता नहीं, वो नॉर्मल कपड़ों में अरेस्ट करता है। वो डिपेंड करता है ना, हर केसेस में वो थोड़ी ना रहता है। तुमने हाँ। देखा है वो बहुत सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जिसमें हमें पूरी व्यवस्था बैठालनी किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए। आया समझ में? नहीं समझे? देखो यहाँ पे लिखा हुआ एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट बियर एन एक्यूरेट एंड विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम व्हिच विल फैसिलिटेट द इजी आइडेंटिफिकेशन। फिर अरेस्ट मेमो बनाएगा, ठीक है ना, जिसमें एक विटनेस का अटेस्टेशन होगा, ठीक है। अब ये विटनेस कोई भी हो सकता है, मेंबर ऑफ फैमिली भी हो सकता है या आसपास की सोसाइटी का कोई आदमी हो सकता है ना। और जो अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट कराया उसके काउंटर साइन भी लेगा, मतलब अरेस्ट मेमो में सिग्नेचर लेगा कि तुम्हारा अरेस्ट किया हमने। अब ये तो वो कर ही सकता है ना, भाई तुम्ही को अरेस्ट किया, तुम्ही साइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ। See, inform the person arrested unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest. अब देखो मेंबर को, अगर मेंबर से ही मेमोरेंडम साइन करवाया, कोई फैमिली के आदमी से ही आपका मेमोरेंडम साइन कराया हुआ है, तो फिर हमें किसी और को जरूरत है ही नहीं बताने की। लेकिन अगर नहीं है तो फिर उसको बता दो कि भैया तुम किसी अपने मेंबर को या दोस्त को बता सकते हो कि तुम अरेस्ट हो गए हो, ठीक है। अब अगर तुम्हारे चाचा भैया ताऊ नहीं कर लिया तो उनको तो पता चल गया ना कि अरेस्ट हो गया, तो अब किसी को जरूरत ही नहीं बताने की, पुलिस वाले की ड्यूटी यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन अगर क्या हुआ है, अगर किसी और व्यक्ति को, मतलब तुमने किसी लोकेलिटी के कोई मेंबर के आपने सिग्नेचर लिए थे, किसी मेंबर फैमिली या फ्रेंड को नहीं बताया, तो फिर उसको जानकारी दो कि हाँ भैया तुम जाओ बता लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम जाओ नहीं, तुम बता सकते हो, हमें बताओ तो हम जानकारी दे दे रहे। है समझ में? ये यहाँ पर राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी हो जाएगा ये।
बिल्कुल ये राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन है, और क्वेश्चन एक मेंस में आता है, राइट ऑफ अरेस्ट। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ये 8 नंबर का प्रॉपर क्वेश्चन आता है। ठीक। Section 37. Designated police officer. The state government shall A. Establish a police control room in every district and at state level. B. Designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub-inspector of police, who shall be responsible for maintaining the information about the names and address of the person arrested, nature of the offence with which charge, which shall be prominently displayed in any manner, including in digital mode in every police station and at the district headquarters. अपने सागर में कहाँ है पुलिस कंट्रोल रूम? पुलिस कंट्रोल रूम देखो, जनरली जो पुलिस कंट्रोल रूम होता है हर एक जिले में, अपने सिविल लाइन में है शायद, देखना तुम, पहले कंट्रोल रूम था ना पुलिस कंट्रोल रूम, हाँ। ठीक है, ऊपर चढ़ते घटिया चढ़ते ही था कहीं पे, अब शायद शिफ्ट हो गया ज्योति है। भवन के इधर के है यहाँ पर। नहीं, वहाँ नहीं था, ये सिविल लाइंस में अपने यूनिवर्सिटी चढ़ते में लेफ्ट साइड पे था। पुलिस लाइन में? पुलिस लाइन में, अंदर है, अभी भी है इधर। हाँ तो वहीं है शायद। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पे एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाएगी, ठीक है, और एक व्यक्ति को डेजिग्नेट कर देगी जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे का आदमी नहीं होगा, जो क्या करेगा, नेम्स एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, किसी व्यक्ति को अगर आपने अरेस्ट किया है तो उसका नाम, ठीक है, उनकी ये सब जानकारी, नेचर, अपराध का नेचर जिससे वो चार्ज हुआ है ना, विच शैल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन। अब क्या हो गया, पहले तो क्या है कि भाई आपको एक बोर्ड लगा के लिखना पड़ता था कि ये व्यक्ति इस अपराध के लिए अरेस्ट हुआ है, अब डिजिटल मोड पे है तो आपने नाम लिख के सबको बता दिया भैया ये डिजिटल मोड पे ऐसे ऐसे व्यक्ति को इस अपराध के लिए हमने अरेस्ट किया था, ठीक है, तो सारे स्टेट को बेसिकली मतलब बेस गृह विभाग को ये जानकारी होनी चाहिए ना कि किस किस व्यक्ति को तुमने किस किस लिए अरेस्ट करके रखा है। हाँ, जिससे वो 24 घंटे वाला प्रोविजन एक चीज बहुत बढ़िया, बिल्कुल, और दूसरा है कि कोर्ट को और व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी भी इसी कारण से हो जाएगी कि भैया पता रहेगा कौन व्यक्ति को कब कैसे किस कंडीशन में अरेस्ट किया गया था। एक सवाल है, 24 घंटे वाला जो प्रोविजन होता है मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है, मान लो कोर्ट की छुट्टी है सर, अरेस्ट शो ही नहीं करते हैं, कोर्ट की छुट्टी कभी नहीं होती, पहली बात, ठीक, कोर्ट की कभी छुट्टी नहीं होती। नहीं तो जैसे अपन ने जैसे कल ही हरि सिंह और जयंती थी, हाँ तो कोर्ट की छुट्टी नहीं थी कल, तो कल कैसे सामने मजिस्ट्रेट कल 3 बजे से 5 बजे तक कोर्ट बैठी थी, उस दिन पेश करना था 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में। अच्छा, हाँ मजिस्ट्रेट आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, 3 से बैठता है मजिस्ट्रेट, रिमांड ड्यूटी रहती है मजिस्ट्रेट, यानी छुट्टी वाले दिन भी ऐसा? कोई भी ऐसा दिन 365 दिन में से नहीं होता है जिसमें कोर्ट छुट्टी पे होती हो, कोई भी दिन, संडे को भी कोर्ट छुट्टी पे नहीं होती, कोर्ट बैठती है, मजिस्ट्रेट भी आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं, लेकिन तुम कहो कि रोज वाले काम होते हैं, छुट्टी के दिन तो नहीं होते। ये इंपॉर्टेंट कामों में आता है कि भैया 24 घंटे अगर हो रहे हैं तो पुलिस को अरेस्ट करना ही पड़ेगा, पुलिस की ड्यूटी है, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा, पुलिस की ड्यूटी है। तो अब जब पुलिस की ड्यूटी है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना 24 घंटे में, तो मजिस्ट्रेट का भी तो उपस्थित होना उस समय पे उसकी ड्यूटी है, तो फिर रिमांड ड्यूटी लगती है, वो कोर्ट आते हैं, रिमांड देते हैं, भैया इसको पुलिस कस्टडी में भेजना है कि उसको जुडिशियल कस्टडी में रखना है कि उसका क्या करना है, पुलिस ने सही अरेस्ट किया नहीं किया ये उस दिन जांचती है, परखती है, बस उसके बाद वो अलाउ कर देती है, डिसअलाउ कर देती है, या कस्टडी को बता देती है कि किस कस्टडी में जाएगा। उसके बाद से फिर जो रेगुलर दिन होते हैं वो नॉर्मल काम चलता है उनका। अब तुम कहो कि छुट्टी के दिन ट्रायल होती है तो ये बहुत एक्सेप्शनल है ना, छुट्टी के दिन ट्रायल नहीं होती किसी की बेटा, क्योंकि ट्रायल एक रेगुलर काम है, आया समझ में, उस दिन हर व्यक्ति चाहिए तुम्हें, नहीं समझ रहे हो, मतलब जो कि पॉसिबल नहीं है ना, और ऐसे तो कोर्ट की फंक्शनिंग से जुडिशियल ऑफिसर्स पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं मेंटल बर्डन और नहीं समझ रहे, वैसे साइकोलॉजिकल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉसिबल नहीं हो किसी के लिए, नहीं होगा, उनकी पूरी कोर्ट पे होगा, कोर्ट के ऑफिसर्स पे होगा, ऑलरेडी इतनी पेंडेंसी है, जुडिशियल ऑफिसर्स इतने परेशान रहते हैं, उनका स्टाफ इतना परेशान रहता है केसेस को मैनेज करने में। अब तुम कहोगे 24 घंटे चले और दिन रात चले तो वो पॉसिबल नहीं है किसी के लिए,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो छुट्टी पे रहती है, नहीं रहती है। वही हम कहें ये कैसे पॉसिबल है, 24 कल मैं रात में आया। आप एक दिन संडे को आप एक दिन संडे को वीडियो शूट कर रहे थे, उस दिन 2-3 आदमी मिले थे कोर्ट के सामने। वो काहे के लिए मिले थे? क्योंकि उनकी रिमांड होनी थी। अच्छा। हाँ, उनकी पेशी थी उनके अपराधी की। Section 38. Right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, so not throughout interrogation. किसी व्यक्ति को जिसको किसी अपराध के लिए एक्यूज किया गया है, उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने द्वारा मनोनीत या अपने द्वारा चुने गए वकील से क्या कर सकता है? मुलाकात कर सकता है। ठीक है, अन्वेषण के दौरान। इसका मतलब ये नहीं है कि वकील पूरे टाइम वहीं बैठा रहेगा पुलिस ऑफिस में। नहीं समझे? ठीक है ना? Section 39. Arrest on refusal to give name and residence. Subsection 1. When any person who in the presence of police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence refuses on demand of such officer to give his name and residence or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. Subsection 2. When the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on a bond or a bail bond to appear before a magistrate if so required, provided that if such person is not resident in India, the bail bond shall be secured by surety or sureties resident in India. Subsection 3. If the true name and residence of such person is not ascertained within 24 hours from the time of arrest, or if he fails to execute the bond or bail bond, or if so required to furnish sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to the nearest magistrate having jurisdiction. देखो, अगर कोई पुलिस ऑफिसर के सामने ही क्या किया है, किसी व्यक्ति ने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पुलिस ऑफिसर उससे उसके घर की, उसके नाम की, सबकी जानकारी मांग रहा है, और या तो वो दे नहीं रहा है या वो दे रहा है तो झूठी दे रहा है। ठीक है ना? तो आप क्या कर सकते हो? उसको अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन किस चीज़ के लिए उसको अरेस्ट कर सकते हो? उसकी नाम वाम पता वता सब पता करने के लिए, है ना? अब जब उसका सही नाम आपको पता चल गया है तो आप उसको बेल बॉन्ड पे या बॉन्ड पे रिलीज कर सकते हो। ठीक है ना? कि भैया मजिस्ट्रेट के सामने जब जरूरत पड़ेगी तो पेश हो जाना। ठीक है ना? प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट द रेसिडेंट इन इंडिया, भारत का आदमी नहीं, भारत में रहने वाला आदमी नहीं है, तो बेल बॉन्ड शैल बी सिक्योर्ड बाय श्योरिटी और श्योरिटी इज रेसिडेंट इन इंडिया। फिर जो बॉन्ड भरवाई जाएगी, वो बॉन्ड जो श्योरिटी से भरवाई जाएगी, वो श्योरिटी कौन होना? भारत का होना जरूरी है। ठीक है? अब अगर उसका सही नाम और पता आपको नहीं मालूम चल रहा है 24 घंटे में, तो 24 घंटे में आप उसको फिर क्या करोगे? 24 घंटे का समय खत्म हो गया। अब रूल क्या है कि 24 घंटे के खत्म होने के पहले आपको उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। तो आप उसका नाम पता वगैरह नहीं कर पा रहे हैं तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश कर दो। मजिस्ट्रेट साहब बताएंगे कि अब क्या करना है। ठीक है ना? मतलब तुम केवल इस कारण से कि उसका नाम वाम पता नहीं चल रहा है तो और टाइम ले लो तो कानून का उल्लंघन हो जाए, नहीं। आप तो जाओ, 24 घंटे की लिमिटेशन फ्री कर दो उसको। ये ऐसा वो सेक्शन होगा जिसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर रही है विदाउट वारंट। यस। नहीं, देखो, किसी व्यक्ति को भी आपने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है आपको। इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वाला कोई बात नहीं है भैया। अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है। अपराध कैसा भी हो उससे कोई फर्क नहीं करता। अरेस्ट हुआ, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दो, खत्म बात। अपन ने पढ़ा है कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये ऐसा सब सेक्शन 1 में ये लिखा है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें पुलिस विदाउट वारंट तो अरेस्ट कर ही देगी। आने वाले मिलेगा ना, आने वाले में अरे 24 घंटे में आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। वो तो हम समझ गए सर। तो जब 24 घंटे का रूल है तो चाहे अरेस्ट वारंट के साथ हुआ है चाहे अरेस्ट बिना वारंट के साथ हुआ, उससे उसका लॉ वो नहीं होगा कम, है ना? आपको तो उसको समझ पेश करनी पड़ेगी। सेक्शन 40 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। बस आज नहीं।